Good morning, ma'am. Morning, everyone. हाँ शिखर, Am I audible? Good morning, ma'am. Yes, ma'am, you are audible. Am I audible, Adya? Yes, ma'am, you are Adya? audible. Audible? Okay. One thing, children, good morning, everyone. I will let everyone join. One thing I'll remind you again, not at any cost you need to leave the class. Even if you are tired or exhausted, but try to attend all the sessions, fine? It would be bigger in the future. The time to come and the school reopens, it would be rather easy, and our teacher is teaching. But after beta, waiting only 7-8 hours. Everyone needs to attend. Otherwise, you'll be, if you are not attending the session, you'll be attending on the entire day. Issue. Sometimes you are not audible. Sometimes I'm not audible. So, beta, we have to manage. Yes, ma'am. Again, so those few of you have not submitted the test. I am waiting. Submit it, beta. Fine. Okay, fine. So let us start the class. I am starting the class. You need to wait. Don't shout. I will start. Fine. So sit along with the beta. Sit along with the notebook and the pen. good morning ma'am. Good morning, everyone. Wait, I'll start the class. Wait, beta. मम्मा कृष्णा परेशान कर रहे पढ़ने में। Children, I'm very much here. Good morning, ma'am.
for studies near you. Good. नहीं 8A और 8B साथ में होता है ना Okay, good morning once more. Let us start the chapter, the same chapter, lesson number 3, beta. So today, that day, something went wrong. I was willing to show you a few pictures so that things could be clear, and so that you don't find it boring. But due to some connectivity issue, that's what I was working for. Today, I'll be showing you children few pictures. You, everyone need to look at the board. But just look at the board. I think you'll find it interesting and easy to understand. Fine. So here, beta, in the picture, which you can see on your whiteboard, you can see everyone don't write anything. First, try to understand, beta. I'll let you know what to write. They just look at the board. I'll try to explain. As I was telling you, Indigo Rebellion. Ma'am, your voice is not audible. Nothing connectivity issue तुम्हारी साइड से उसे बार-बार मत बोलो. तेजस बार-बार बोलने से कुछ होगा नहीं. ठीक है? Try to same problem. कभी boys, कभी-कभी बेटा आपकी आवाज मेरे पास नहीं आती, कभी मेरी आवाज आपके बेटा, but we need to cooperate. ठीक है? So Tejas, so what happened in the picture? You can see it's written there, beta. This is a revolt. It started in Saint Dominique. Written here, Saint Dominique is in a Caribbean island. Caribbean island beta, के पास एक आइलैंड है. वहाँ पर सेंट डोमिनिक सेंट डोमिनिक वहाँ पर जो ये आप देख रहे हो ना, ये जो स्लेव्स थे बेटा, जो गुलाम लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, फ्रेंच प्लांटर के खिलाफ एक रिबेलियन, एक विद्रोह, एक फाइट शुरू करा. इट इज शोन इन द कैरिबियन आइलैंड. द प्लेस नेम इज बेटा सेंट डोमिनिक. एक रिबेलियन शुरू हुआ, एक लड़ाई शुरू हुई. अधिराज भी अटेंटिव. एक लड़ाई शुरू हुई. द इंडिगो वर्कर्स, इंडिगो का हिंदी में मतलब नील होता है ना, ब्लू कलर. यस मैम. इंडिगो इज अ प्लांट. तो वहां के जो वो थे ना बेटा, स्लेव्स जो थे, जिनको प्रेशराइज करा था फ्रेंच प्लांटर ने उनको फोर्स करा कि तुम इंडिगो पैदा करो, नील पैदा करो. बट व्हेन दे गॉट फेड अप, वो थक गए बेटा प्लांटर्स के अत्याचार से. उन्होंने एक रिवोल्ट शुरू कर दिया. द प्लेस वाज सेंट डोमिनिक इन द कैरिबियन आइलैंड. दिस वाज अ रिवोल्ट बाय द स्लेव्स. जो स्लेव माने जो गुलाम थे बेटा, जिनको वो एक्सप्लॉइट करते थे. कौन एक्सप्लॉइट करता था? फ्रेंच प्लांटर बेटा. फ्रेंच लोगों ने कैरिबियन आइलैंड पर इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए एक्सप्लॉइट करा. हैव अ लुक. कुछ लिखो नहीं, बस देखते रहो, पिक्चर देखते रहो. अभी देखो सेकंड पिक्चर देखो सब लोग. स्टॉप राइटिंग. अभी देखो बेटा, इन दिस पिक्चर पढ़ लेना. In this picture, what this is a simple thing बेटा. इसमें देखो लिखा हुआ workers, please be quiet. Workers harvesting indigo. Harvest करना, cutting करना. इसमें दिखाया गया ये देखो indigo workers. ये workers है, ये क्या कर रहे हैं? You can see they are cutting बेटा. Cutting indigo. Cutting कर रहे हैं indigo. ठीक है? These are the simple picture. Now the next one. Now something very important. सब लोग अब ध्यान से सुनना, ठीक है? I'll explain बेटा how was indigo produced. अब मैं आपको बताती हूँ कि इंडिगो बनता कैसे था. I am telling you, I have already told you बेटा. चुप हो जाओ पहले, be quiet.
इंडिगो वाज अ प्लांट बेटा, ठीक है, एक प्लांट था, क्योंकि क्या होता था प्रोसेसिंग के लिए। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंडिगो फैक्ट्री बेटा, ये इंडिगो की ये फैक्ट्री है। आपको पता है इंडिगो प्लांट था, तो डायरेक्ट प्लांट से तो मैंने बताया ना, इंडिगो वाज यूज्ड एज अ डाई, उसे डाई बना जाता था, कलर रंगा जाता था, ब्लू कलर यूज होता था ना। तो क्या होता था ये है ना, मैं ये देखो 1 2 टैंक दिख रहे हैं बहुत सारे बेटा। तो क्या होता था, देखो ब्लॉक कार्ड और जो वर्कर्स थे ना, जो आई शो यू, अभी देखो कितना फैक्ट्री देखो पहले, ये देखो लेडीज बेटा, यूजुअली कैरी द इंडिगो प्लांट टू वेट, क्या था वेट, ये देखो सिर में रखता है लेडीज और ये देखो everyone have a look at beat where it was a tank, वो टैंक मैंने अभी दिखाए थे, अभी दिखाऊंगी, पहले समझ लो। ये आदमी ना, ये इसे वैट बीटर कहा जाता था। इसके हाथ में ये देखो एक लंबी सी लकड़ी है ना बेटा, ये वुडन, दिस यूज्ड टू बी कॉल्ड पैडलर, पैडल, ये पैडल है ना इसके हाथ में, ये लंबा सा, ये वैट बेटा, वो टैंक जिसमें की इंडिगो फाइनल शेप दिया जाता था, प्रोसेसिंग होती थी, ठीक है। और वैट बीटर कहते थे। ये क्या करता था, ये डंडा है ना हाथ में, इसे जो लिक्विड था, मैं बताती हूँ ये क्या होता था। नाउ जस्ट वेट, ये देखो तुम लोग अभी आए, नाउ हैव अ लुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ इंडिगो वर्क प्रोड्यूस। सब लोग ऊपर देखो, उसके बाद आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन एंड इवन नाउ ये देखो, ये देखो, ये राइट माने स्टोरिंग वेसल, वो टैंक जहाँ की क्या होता है, जो इंडिगो की जो लीव्स होती थी ना बेटा, इंडिगो वाला प्लांट, ये चीज आपको मैंने दिखाया है। ब्लॉक कार्ड देख रहे हो, ये ब्लॉक बैलगाड़ी, इसमें जो इंडिगो आता था ना, लीव्स पत्तियां आती थी, वो सब पत्तियों को तोड़कर इस टैंक में, इस टैंक में, जिससे कि स्टोरेज वैसे कहा जाता है बेटा, नहीं तो समझ इसके अंदर आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू इन हिंदी आल्सो, ये देखो ये वैसे बेटा, इसमें यहाँ पर कुछ पत्तियां पड़ी हैं, और ये क्या था, अभी क्या दिखाया था मैंने, एक पैकेट लंबा सी डंडा जो पकड़ा हुआ था वैट बीटर के हाथ में था, वो देखो ये लंबा सा पैकेट। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो इंडिगो था उसकी पत्तियों को तोड़ के उसके बाद पत्तियां तोड़ी क्वेश्चन, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, चुप हो जाओ। तो इसमें डाल, और इसको, इसमें क्या होता था, लीव्स को डाल, एंड लीव्स को वाटर में डाला जाता था, पानी में, ठीक है। एंड द लीव्स वर सपोज्ड टू वेट फॉर सेवरल आवर्स, बहुत घंटों तक इंडिगो की पत्तियों को फर्स्ट टैंक या वेट उसको टैंक में डाला जाता था सेवरल आवर्स, कई घंटे। उसका क्या होता था बेटा, द वाटर वाज सपोज्ड टू, जो पानी होता था ना टैंक में, थोड़ा हल्का गर्म पानी होता था, उसमें भिगा के छोड़ दिया जाता। When the plant fermented, हल्के में पानी में बेटा भिगा दिया जाता था ना पत्तियों को, तो प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन स्टार्टेड। बबल फर्मेंटेशन माने बॉइलिंग हो जाती है, और ये पानी धीरे धीरे कई इसमें से निकलने लगते थे। जैसे आपकी मम्मा कुछ चीजें बनाती है घर में फर्मेंटेशन के लिए, इनो डालती है ना, इनो यूज करती है, आपकी मम्मा करती है मैम। यस मैम, इसमें देखा है बबल्स, यस मैम, ये ना बबलिंग होती है। जब वो पानी बॉयल होता था तो क्या होता था बेटा, इन पत्तियों को ना, आई एम ट्राइंग टू अलग निकाल दिया जाता था। फर्मेंटेशन
जाता था एसिड वाटर, ये वाला जो पानी होता था ना नाउ द रिटर्न लिक्विड और इस पानी को में डाल दिया जाता था और उसके बाद उसको में अब क्या होता था बेटा, सेकंड में क्या होता था, बिलो द फर्स्ट वेट ओके में होता है, नीचे होता था इन द सेकंड वेट, जो सेकंड वेट है ना ये तो फर्स्ट हो गया बेटा, आई विल पॉइंट आउट कि तो जस्ट बिलो इट था, इसमें क्या होता था, क्या हुआ? लिक्विड ग्रेजुएट। सेकंड वेट में क्या होता था, बीटर, मैंने अभी आपको एक आदमी दिखाया था ना, वेट बीटर एक आदमी जिसके हाथ में था, okay, continue this connectivity, so we need to manage. So what happened beta, I'm trying to so that you easily understand it, right? So second wet में क्या होता था बेटा, I showed you a picture of this person, I showed you again, ये दिखाया था, ये आदमी दिखाया था ना बेटा, ये this person wet, जो वैट बीटर होता था, ऐसे बहुत सारे लोग वैट बीटर्स अपनी पैडल के साथ, व्हाट इज पैडल, ये वाला जो उनका जो टूल है ना, ये पैडल के साथ सेकंड बैट में क्या रहता था, राइट, सारे लोग वैट बीटर क्या होता है बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट वुड बी इजी, समझ में आ जाएगा। सेकंड उसमें वैट में बेटा क्या होता था, the wet beater continuously stirred and beaten with paddles। सेकंड वाला जो वेट होता था ना बेटा टैंक में, उसमें ये जो वेट बीटर है इसको इस को कंटिन्यूसली बीट करते, स्टर करते थे, चलाते रहते थे, इसको कंटिन्यूसली बीट करते थे पैडल्स। और व्हेन द लिक्विड टर्न ग्रीन, लिक्विड का ग्रीन, उसमें पत्तियां डाली थी ना, उसका कलर धीरे धीरे बेटा ग्रीन हो जाता था कंटिन्यूस स्टरिंग से। एंड देन ब्लू, पहले सेकंड वेट का कलर ग्रीन होता था, फिर होता था बेटा ब्लू, एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द कलर टर्न ब्लू, व्हाट हैपेंड, लाइम वाटर वाज एडेड टू इट। सेकंड वेट में कंटिन्यूस स्टरिंग करने से क्या होता था, कलर पहले ग्रीन होता था पानी का जो लिक्विड था बेटा, फिर उसका टर्न हो जाता था ब्लू, इनटू दैट लिक्विड लाइम वाटर, चूने का पानी, लाइम वाटर वाज एडेड टू इट, ठीक है। अभी क्या होता था, स्टिली द इंडिगो सेपरेटेड आउट इन द प्लेस, जब उसके साथ लाइम वाटर ऐड होता था बेटा, तो क्या होता था, सेकंड वेट के बाद होता था धीरे धीरे होता था ना इंडिगो, इट गॉट सेपरेटेड, पानी में से अलग हो जाता था धीरे धीरे, क्या चीज बेटा, इंडिगो, फाइन, इनटू सेपरेटेड इनटू प्लेट्स। व्हाट इज प्लेट्स, बहुत थिन फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटी छोटी पार्टिकल्स। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई चीज पानी के साथ मिक्स होती है एंड इफ दैट थिंग इज हैवी, कभी कभी सेडिमेंट नीचे बैठ जाते, तो ऐसा होता था वो जो वो था वो सेपरेट हो जाता था कंटिन्यूस स्टरिंग से। एक हैवी जो उसमें सेडिमेंट्स होते थे ना इंडिगो के बेटा, वो धीरे धीरे क्या होते थे, पहले पानी ग्रीन हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर उसमें लाइम वाटर मिलाया गया, कंटिन्यूस स्टरिंग, कंटिन्यूस चलाया गया, तो उसमें से जो इंडिगो था वो कंटिन्यूस स्टरिंग से अलग हो जाता था। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे आपकी मम्मा या घर में कुछ कभी घी या बटर को कंटिन्यूस चलाती है स्टरिंग, तो अपने आप बटर निकलता है ना बेटा, सेम वे Yes, ma'am. अलग हो। Yes, ma'am.
and settle at the bottom. Muddy settlement जो वो था ना इंडिगो, वो नीचे बैठ जाता था बेटा, and clear liquid rose to the surface. और जो मडी सेडिमेंट से वो जो नील होता था ना, वो नीचे बैठ जाता था और पानी ऊपर रह जाता था, ठीक है। फिर क्या होता था, दैट लिक्विड वाज ड्रेन्ड ऑफ, जो बचा वो ऊपर पानी आ जाता था, नीचे इंडिगो बैठ जाता था, सो द वाटर वाज ड्रेन्ड ऑफ, पानी को वहां से बाहर निकाल दिया जाता था, एंड द सेडिमेंट एंड द इंडिगो पल्प ट्रांसफर टू अनदर वेट। अभी क्या हुआ, सेकंड वेट में क्या हुआ बेटा, पानी ऊपर रह गया, जो पल्प है इंडिगो का वो नीचे बैठ गया, so the water was drained off, पानी को निकाल दिया जाता था, and that indigo pulp जो नील था उसको it was again transferred into a new vat, उसको फिर एक और में ट्रांसफर करा जाता था। मैं आपको बता रही हूँ कि जो इंडिगो बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बेटा, it took place in many steps. I'm trying to explain you. I hope you are getting my point. सबको समझ में आ रहा है? If you are understanding, raise up the hands. कितने बच्चों को सीमा मैम की बात समझ में आ रही है? दीक्षा, हाँ, show me a thumb, give me a thumb, yes, give me a thumb. If okay, fine. समझ में आ रहा है ना बेटा? Okay, fine. Okay, that's good. That's good. अगर ध्यान दोगे तो मैं I'm trying to explain in Hindi also, otherwise I'm not. So that to make the things clear. अभी देखो, अभी क्या होता था बेटा? उसको लाइम वाटर ऐड करा, सेडिमेंट था वो नीचे इंडिगो का और पानी ऊपर रह गया, तो पानी बेटा उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था, पानी को निकाल दिया जाता था, एंड जो सेडिमेंट जो नीचे बैठ जाते थे इंडिगो के, दे वर ट्रांसफर्ड इनटू अ न्यू वेट। और न्यू वेट में क्या होता था बेटा, उसको उस वेट को जो नया वेट था जिसमें कि वो पल्प जाता था, इट इज नोन एज सेटलिंग वेट, उसे सेटलिंग वेट कहते थे। एंड देन दिस सेटलिंग वेट क्या था, यही फाइनल क्या था, इंडिगो था। इट वाज देन प्रेस्ड एंड ड्राइड फॉर सेल। वो जो पल्प थर्ड उसमें पहुंचा ना, दीक्षांत आर यू फॉलोइंग, समझ में आ रहा है बेटा? थर्ड उसमें जो दीक्षांत जो पल्प पहुंचा वो क्या हुआ, वो बेटा सूखा, उसमें से पानी निकल गया, वो मॉइस्चर देगा। इट वाज देन ड्राइड, उसको फिर ड्राई करा जाता था। आई शो यू व्हाट हैपेंड इन द लास्ट स्टेज। आई हैव गॉट द पिक्चर फॉर यू बेटा। लास्ट स्टेज ये देखो, मैं दिखा, ये लास्ट स्टेज। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देखो, द इंडिगो इज रेडी फॉर सेल। ये देखो अभी इंडिगो बन गया, ये देखो फाइनल स्टेज, ये प्लेट जैसी ब्रिक जैसी बन गई ना। गुरलीन कैन यू सी बेटा, गुरलीन कैन यू सी, ये देखो ये क्या हुआ, इज रेडी फॉर सेल। हियर यू कैन सी द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, वर्कर्स स्टैंपिंग एंड कटिंग द इंडिगो पल्प। ये देखो ये पूरा बन गया ना, वो पल्प जो था बेटा उसको मोल्ड में डाला, सांचे में डाल दिया गया, मोल्डिंग कर दी गई, उसको शेप दे दिया गया, एंड यू कैन सी वन वर्कर, एक वर्कर देखो, ये वर्कर जिसके सिर पर ये इंडिगो पल्प रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, ही इज टेकिंग इट टू ड्राई, वो उसको सुखाने के लिए ले जा रहा है। उसमें मॉइस्चर था ना लास्ट स्टेज में, मैंने आपको बताया था थर्ड वेट में। तेजस, दीक्षांत, तेजस नेक्स्ट क्लास, आई वोंट लेट यू गेट इन, स्विच ऑन योर वीडियो तेजस, आई विल कंप्लेन, जल्दी करो। तेजस यादव, हाँ बेटर, क्लास में बैठना है तो इट इज मैम ऑर्डर, बेटर डू इट, ठीक है। तेजस समझ में आ रहा है, रेज अप द हैंड। तेजस डू यू अंडरस्टैंड? ओके फाइन, हैंड्स डाउन। यस मैम, अरमान की भी तो बंद है। So everyone, I'm clicking your picture continuously, sending it to the principal ma'am. She'll take action. Don't do it, beta. Once it is ma'am's order, everyone needs to follow. Switch on the video. आप without video के आप क्लास में नहीं बैठ सकोगे. Teachers cannot shout all the time, but we have been given the instruction and order to click the picture and send. I'll send. तेजस जिसने औरों ने नहीं करा होगा, they are in trouble. अभी आप बड़े हो गए तो बेटा डोंट वेस्ट टाइम इन सच थिंग, बी इन डिसिप्लिन। सब लोग करो, सब कुछ समझ में आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम। ये अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज द टूल, मुझे इस टूल का नाम बताओ। द वन टूल दिस वैट बीटर इज होल्डिंग, व्हाट इज दैट टूल नोन एज? अगर समझ में आ गया, व्हाट इज दैट टूल नोन एज? इस टूल को क्या कहते हैं? अगर आपको मेरी बात समझ में आई जल्दी बताओ, व्हाट इज दैट? Pedal. Very good answer. And what is the work of this wet beater, beta? Sir, paddle. What is the work? इसका काम क्या है?
Share the solution. Share the solution. That's very good. उसका काम है आद्या. What is the work बेटा? क्या करता है wet beater? आद्या? Ma'am, What is the work? stir the solution. Continuously stirring. Puneet, why this person is supposed to continuously stir? Puneet, ये continuous stir क्यों? Why does he do it? Continuously stir क्यों करता है? Who knows the answer? पुनीत बताओ. क्यों करता है इसे? Ma'am, because Ma'am. from water. Then only from water. Yes, ma'am. Yes. Puneet, Adya, you wait, beta. Adya is knowing. Puneet, I am willing to know. Why there is a continuous stirring? Continuous stir क्यों करता है? Puneet, अभी देखो आद्या ने आंसर बताया. दीक्षा. Yes, ma'am. Why continuous stirring is required, beta? Ma'am, because ma'am, indigo separate from water and settle down. Very good answer. Because indigo gets separated. Fine. Very good answer. I am happy. Sometimes children like you, I also get tense कि मेरे बच्चों को कुछ समझ में. I hope you understand. Picture से समझ में आ गया ना सबको? Yes, ma'am. तेजस यादव. Say yes. नहीं तेजस यादव बोलो. तेजस यादव. दीक्षांत नहीं है. दीक्षांत से नहीं बात करी मैं. तेजस. Yes, ma'am. What is the name of the tool that? Yes, ma'am. क्या कहे जा रहे हो? सुनो तो सही. I am asking what is the name of the tool which the repeater is holding? Tejas Yadav, I need an answer from you. Answer बोलो. Tejas Yadav, what is other way? बेटा आपको एक ही चीज तो समझ क्या तेजस बोलो. अभी तुम इतनी शैतानी करते बताओ. Easiest. What is that? Tejas, what is this? ये स्टिक जैसा क्या है? तेजस, व्हाट इज द नेम? मैम बेटर. दीक्षांत ने बताया. पैडल. मेरे को तेजस याद बताया. तेजस, कमलप्रीत, व्हाट इज दैट? कमलप्रीत, वीडियो. मैम वेट बीटर. What is that? Wet beater is a person, beta. No. That is the name of the person. This is paddle. What is that? पैडल. ये देखो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, वेट बीटर. जो वेट बीटर बीटिंग करता है ना, उसको चलाता है. इस आदमी का नाम वेट बीटर है. इस आदमी क्या है? पैडल. ये देखो ये क्या है? पैडल. क्या है बेटा? ये लंबा सा टूल क्या है? दिस इज पैडल. से व्हाट इज दिस? पैडल. एंड दिस पर्सन इज नोन एज वेट बीटर. जो स्टर करता है ना, जो कंटिन्यूस चलाता है, उसका नाम, उसको बोलते हैं वेट बीटर. ठीक है. ओके. तो समथिंग मोर इम्पोर्टेंट. आई कीप ऑन शाउटिंग एंड टीचिंग. अभी चलो, अभी टाइम आ गया कि मैं तुमसे एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ. इतना टीचर्स अभी मुझे बताओ. मैंने लास्ट टर्म पे आपको पढ़ाया था बेटा. कैन यू नेम टू सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन? तन्मय, आई नीड आंसर फ्रॉम यू बेटा. Then two system of indigo production. Can you name? Ma'am, can you repeat the question? Can you repeat the question? Yes, I can. I am asking Tanmay. Can you tell me two method of indigo growing? Last time मैंने आपको पढ़ाया था. Two methods समझाए थे. Who will tell? तन्मय बोलो बेटा. दो मेथड पढ़ाए थे. So keep in touch with the book. Keep on reading. कौन बताएगा? Who is the intelligent child of the class? बताएगा मुझे. जल्दी बताओ. Raise up the hand. The Monero system. बताओ. मैम your voice is not clear. अब कोई बात नहीं, किसी को तो सुनाई पड़ा हो. सारे लोग मत बोलो. मुझे बताओ दीक्षा. टू सिस्टम ऑफ वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका. बेटा नहीं. आई एम आस्किंग. सुनो पहले क्वेश्चन सुनो. तन्मय, आई एम आस्किंग टू सिस्टम ऑफ इंडिगो ग्रोइंग. मैंने लास्ट टाइम चिल्ला कि दो सिस्टम थे ना. there were two methods of production of the indigo. Satakshi, indigo was produced using two systems. दो सिस्टम बताए थे ना. कौन कौन से सिस्टम थे? दो तरीके जिससे मैम निज एंड ज्योति. yes निज सिस्टम, NIJ, और एक और बेटा रियोटी. वेरी गुड. अब मुझे बताओ व्हाट वाज दैट निज सिस्टम. कौन बताएगा? निज सिस्टम क्या था बेटा? Raise
the hand and let me ask. क्या था बेटा? Yes. In niche system, the planter produced indigo in land which he directly controlled. Which he directly controlled. That's good. निच सिस्टम बेटा वो देर बार अभी मैं बता देती हूँ फिर से. निच सिस्टम बेटा वो सिस्टम था जिसमें कि देर वर 2 सिस्टम. इंडिगो अभी सुनो. Saturday, coming Saturday, I am going to take an activity from lesson number 3. हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 से एक्टिविटी होगी. सब लोग 2 2 3 3 4 4 5 मिनट्स का. ठीक है, डन. लेसन को पढ़ो. यू कैन रोल प्ले कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट यू डू इट. नेक्स्ट सैटरडे भी बहुत टाइम है बीच में. ठीक है, बहुत टाइम है. लेसन नंबर 3 लेसन यही वाला चैप्टर, इसी चैप्टर में Ma'am, you will ask questions. एक्टिविटी enactment. Ma'am, you will ask questions. अरे अरे भाई, जैसे एनरिचमेंट एक्टिविटी करते थे ना, तो तुम अपना कोई भी टॉपिक तैयार कर लो. अभी नहीं. अच्छा, ओके मैम. ठीक है. Yes ma'am. क्वेश्चन आंसर तो बच्चे रट लेते हैं ना, पता नहीं चलता. तन्मय, हैव यू अंडरस्टूड? Yes ma'am. सब लोग तैयार करेंगे. सैटरडे, अगले सैटरडे, बहुत टाइम है. चलो. अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रही थी, रियोटी सिस्टम क्या था? निच सिस्टम था. निच सिस्टम में क्या होता था बेटा? तो वो Rioti system, the farmers Adya, not Peter. I know you are a good girl. Someone else. Adya तो बताती है मुझे. कोई someone else. अभी किसी और से भी जानना चाहती हूँ मैं. कोई और बच्चे ताकि पार्टिसिपेट है. कोई और बच्चा. Everyone switch on. Hey, अधिराज, संस्कार, सब लोग स्विच ऑन कर लो. यू आर बीइंग वॉच्ड. अभी बताएगा शिवांश. शिवांश, गुड मॉर्निंग. रियोटी सिस्टम क्या था? रूल टैग. इसको आप बताओ. मैम किसी आता है बताओ. आप बोलो. मैम द सिस्टम यू आर अलाउड. बोलो. वर फोर्स्ड टू साइन द एग्रीमेंट. ओके. द forced to sign the agreement. सुनो. बता दूंगी, लेकिन सैटरडे एक्टिविटी होगा बेटा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. ठीक है, सैटरडे. Excuse me मैम. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं था, दोबारा से बता दीजिए एक्टिविटी के बारे में. मैम के बारे में बता. दीक्षा, मैं आपसे कह रही हूँ बेटा, सब लोग फिर से सुनो. शुभ मिश्रा, मैं बोल रही हूँ बेटा, जो नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट वीक, उस दिन दीक्षा लेसन 3, ये जो लेसन है ना, ये लेसन 3, इसका वेट. अरे जो मंडे को इस चैप्टर का रिकैप. सिफत, आर यू अंडरस्टैंडिंग? मंडे को लेसन 3 इसका रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे एक बार. और सैटरडे जो आएगा बेटा, उसको आई वुड लाइक टू टेक एन एक्टिविटी so that I could know how much you understood. Everyone, video on. Ma'am, excuse me, ma'am. Yes, beta. Excuse me ma'am. Civics homework is, ma'am. Yes. ma'am, I already sent my civics homework to you on your mail, ma'am. Do I have to send it again by Ma'am. They are advising, try to send it again. No harm, beta. I am ready to check and I need to follow Ma'am. whatever instruction I get. So, हाँ बेटा. Ma'am, I have sent you on EduNext my civics homework. You have got. EduNext is nothing. EduNext पर कुछ भी चेक नहीं होगा, आपको मालूम है ना. This math, this
मैसेज हैज बीन फ्लैग्ड मैनी टाइम्स। हाँ नहीं एडिनेक्स पे होगा, एडिनेक्स पर होगा। मैंने एविडेंस पे भेजा, आपको मिल गया? हाँ ठीक है ओके, एडिनेक्स पे भेजा तो आई चेक, नो प्रॉब्लम। और एक बात सुनो, ये अभी जो आपका अटेंडेंस है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पीरियड में एब्सेंट दूसरी बात आप सुनो, अगर एसएसटी का पीरियड 4th है, यू कैन नॉट बी एब्सेंट। इफ यू आर फाउंड एब्सेंट इन वन पर्टिकुलर सेशन, यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि सेशन 4 में आप एब्सेंट हो, स्कूल में भी तो पूरे टाइम रहते हो ना, तो अटेंडेंस इतनी कम है, आई विल ब्रिंग इट टू द नोटिस एंड मैं विल आस्क यू व्हाई। ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि मन से कभी चले जाते हो, जाना नहीं बेटा। यू थिंक दैट यू आर इन द स्कूल, यू कैन नॉट बी एब्सेंट, योर वीडियोस हैव टू बी टर्न ऑन, वो ध्यान रखो, ठीक है। और लेसन नंबर, यही लेसन पॉइंट मैं फिर से एक और सिंप्लीफाइड मैनर में मंडे को बेटा वी विल रिवाइज, ताकि जो आपका थोड़ा डाउट रह गए क्लैरिटी। थर्सडे को आपका जैसे क्लैरिफाइंग सेशन होगा ही, मंडे को इसका रिकैप होगा, और सैटरडे को मैं इसमें से एक एक्टिविटी दूंगी। एक्टिविटी के लिए जैसे हम लोग करते थे, आप लोग कुछ भी प्रिपेयर करो, रोल इनैक्टमेंट करो, कुछ करो, ठीक है? ओके मैम, यस मैम। एवरीवन प्लीज very short, 2 to 3 minutes, so that everyone can participate. And one more request, everyone keep on reading the lesson. Reading the lesson is compulsory, and submit the homework. Now it is time to wind up. Okay ma'am. So I end the meeting here. Bye everyone. Thank you ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, to all. Good afternoon, sir. Good afternoon to all. Okay, कैसे हैं सब? Yes, sir. सर बढ़िया। ध्यान रखना बेटा, पीडीएफ बहुत छोटी होनी चाहिए। पीडीएफ अगर ज्यादा बड़ी होगी तो वो नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ स्टोरेज होती है पीडीएफ की, उसमें जिसकी पीडीएफ ऐसे सेंड नहीं होगी तो वो प्लीज उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मींस 2 एक्सरसाइज एक साथ भेज देना या 2 एक्सरसाइज एक साथ, लेकिन प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि आप लोग रेगुलर होमवर्क भेज रहे हो, जो आपका होमवर्क रह रहा है सिर्फ उसी को भेजना। अच्छा, आप लोगों ने, आपको एक वर्कशीट और दी थी मैंने, मंडे को मैं उसके आंसर की भी दे दूंगा, ठीक है? Excuse me, sir. यस बेटा। हमें पीडीएफ बना के देनी आगे से।
आप कैसे भेजोगे फिर मेरे को बताओ? नहीं सर, हम लोग फोटो खींच के भेज नहीं सकते। हाँ वैसे भी, लेकिन इतना ध्यान रखना उसमें साइज कम होना चाहिए, 10 MB से कम होना चाहिए, वहाँ पे लिखा होता है ना। नहीं सर, मैंने तो आपको वो भेजा तो वो चला गया था। ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपका आ जाता तो वेरी गुड, आप देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे को व्हाट्सएप या कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। चैप्टर 2 का तो मेरे में 40 पेजेस का काम है, उसकी पीडीएफ बना के भेजो। बेटा वो आपकी मर्जी है, चाहे पीडीएफ बना के भेजो, चाहे मेरे को सिंपल सी फोटो खींच के भेजो, लेकिन हो सके तो फोटो पता किससे खींचनी चाहिए? ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, किससे खींच दो फोटो? कैमरा। नहीं कैमरा मतलब एक कौन सा ऐप यूज करते हो उसमें? सर नॉर्मल कैमरा जो डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट होता है ना, एक होता है कैम स्कैनर। सर कौन सा कैमरा? कैम स्कैनर, CAMSCANER। उससे क्या होता है, उससे बिल्कुल नीट एंड क्लीन फोटो आती है, और तो वो डाउनलोड कर ले रहे हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं ना, वो भी उससे कट कर सकते हैं आप। ओके, एनी मोर डाउट? और कुछ पूछना है किसी को? नहीं सर। ओके, मंडे को आपको मैं उसकी जो वर्कशीट दी है उसकी भी आपको आंसर की दे दूंगा, ठीक है? फिर उसको भी चेक कर लेंगे। ओके, अभी ओनली क्या बेटा? सर कैम स्कैनर वही है फिर जिसका लोगो CS है। हाँ बेटा CS, उससे क्लिक करोगे ना तो उसमें बहुत अच्छी फोटो आती है, एक बार डॉक्यूमेंट्स क्लिक करके देखना, उसमें फोटो क्लिक करके देखना। और ये सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लिक करने के लिए ज्यादा यूज अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि आप अपनी फोटो भी खींच रहे हो उससे। ओके मॉर्निंग सर, पैसे के बाद फोन पे। गोल्डी मसाले, गोल्डी मसाले जहाँ बच्चे रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले हैं। मम्मा टीवी की आवाज कम कर लो। गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून बेटा, इट्स गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल। अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज सिर्फ शायद हम देखते हैं कितना कर पाते हैं, पहले हम इंट्रो पार्ट करते हैं इसका। क्या करते हैं? इंट्रो पार्ट। ओके, ओके, हियर वी हैव माय स्क्रीन। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जैसे एक नंबर है 4, एक नंबर है 4, ठीक है? 4 और मल्टीप्लाई मैंने 4 कर दिया, और हमें पता है 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आता है? 16 आता है, ठीक है? अब बेटा कितने 4 लिखे हुए हैं?
2 4 लिखे हुए हैं तो मैं इसको क्या भी लिख सकता हूँ, 4 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। किसी को कोई डाउट है इसमें? क्यों? क्योंकि No, बेस sir. की पावर ऐड हो जाते हैं, ये आप एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में सीखेंगे। कोई डाउट इसमें? अब जब 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है तो 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। मम्मा आवाज कम कर लो टीवी की। क्या होता है? 16। ओके, तो 4 मल्टीप्लाई 4 का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर, और 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 16। इज इट क्लियर टू ऑल? और बेटा इसी को हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर कहते हैं। मतलब क्या हुआ स्क्वायर का? स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर की अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देने को ही स्क्वायर कहते हैं। क्या कहा? किसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई करने को ही स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना नंबर सिर्फ 2 बार आना चाहिए, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7, 8 मल्टीप्लाई 8। किसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई को स्क्वायर कहते हैं, किसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई को स्क्वायर कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, इसके बाद आता है बेटा स्क्वायर रूट। क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 25। 25 का मतलब होता 25 है, और आपको ये पता करना है एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए। तो वो नंबर कौन सा होगा? 5 मल्टीप्लाई 5। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? 5। ओके, ये दो चीजें हैं। एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है किसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई करने को ही स्क्वायर कहते हैं। मींस 4 की मल्टीप्लाई खुद से, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? किसी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब होता है जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, मतलब हम ये फाइंड करते हैं एक ऐसा नंबर जिसकी खुद पर मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए। जैसे 25 एक नंबर है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ जाए, मींस 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, इतना सब क्लियर है सबको? ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है? अच्छा, थंबनेल दो मेरे को अगर ये समझ में आए। 2 पॉइंट बताए मैंने, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इजी था, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं था। ओके, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं? प्रॉपर्टीज ध्यान से देखें। तो स्क्वायर की डेफिनेशन आपको करना नहीं है क्योंकि ये इंट्रो पार्ट है, कुछ ज्यादा करना नहीं है इसमें। सही है, आपको करना क्या मैं वो बताऊंगा इंट्रो पार्ट में। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, इट इज द नंबर रेज्ड टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मींस 2 स्क्वायर। ओके, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर की बात करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? उसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, और किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट जो स्क्वायर होता है किसी भी नंबर को, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। चाहे तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव आएगा, चाहे प्लस वाले नंबर का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव आएगा। ओके, is it clear? Next, all the numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 at unit place. ध्यान से सुनो इस वाले पॉइंट को। जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं ना किसी नंबर का, जब भी ना किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है वो कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। क्या बोला मैंने? अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें, किसी भी नंबर का, उसका स्क्वायर करने पर जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, जो उसका यूनिट प्लेस होगा, मतलब वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो कभी क्या नहीं होगा? 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 2, 3, 7, 8। मीन्स अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 628 तो ये 100% किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 8। अगर किसी के लास्ट में 2 है तो भी वो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लास्ट में 2 है। मीन्स जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं ना 100% उसके लास्ट में क्या होगा? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 5, या 6, या 9। आपको ये याद नहीं रखना क्या होता है, आपको ये याद रखना क्या नहीं होता। और क्या नहीं होता है? 2, 3, 7, 8। ओके, सिमिलरली अगर हम देखें, अगर किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं ना तो उसके लास्ट में 0 तो होते हैं लेकिन वो पेयर में होंगे, या तो 2 zeros होंगे, या 4 zeros होंगे, या 6 0 होंगे। सपोज करो मैं कहूं कि ये किसी का स्क्वायर, ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट होता है? यस होता है। किसका?
10 का। क्यों? 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 आ जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर रूट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि इसमें जो जीरोस है वो पेयर में नहीं है। ओके, ये सेकंड स्टेप था। इसी तरीके से स्क्वायर रूट इज द इनवर्स। अच्छा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मींस इनवर्स होते हैं। स्क्वायर रूट को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? इस वाले साइन से। इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। इसको अंडर रूट बोलते हैं और कहीं कहीं स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। अंडर रूट एंड स्क्वायर रूट, इसको हम स्क्वायर रूट, इस साइन से हम स्क्वायर रूट को डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है सामने आपके। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। A number ending 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square। क्लियर लिखा हुआ है, किसी कोई भी नंबर जो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 152, 1028 एटसेट्रा। अ नंबर एंडिंग 0, सही है, कोई नंबर अगर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड हो रहा है तो वो भी एक स्क्वायर नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी नंबर, कोई इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर ही आएगा। क्लियर? स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड, किसी भी ऑड नंबर का क्या करेंगे? स्क्वायर, तो वो ऑड ही आएगा। अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ 0 कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आपको बता दिया। जीरो, अगर 0 से एंड हो रहा है तो उसमें 0 में क्या क्या होने चाहिए? पेयर होने चाहिए। अगर पेयर नहीं है तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव, अच्छा, दो नंबर ले लिए और उनके डिफरेंस का हम स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा किसके इक्वल? n+1 प्लस n के बराबर। ओके, अभी ट्रिपलेट वाला सीखेंगे, ये ट्रिपलेट वाला बाद में है, लास्ट में एक्सरसाइज में आएगा तब सब बता देंगे। ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करना है बेटा? इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट की डेफिनेशन लिखनी है और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर से लिखने हैं। मींस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ओके, ओके, ये क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? कुछ ऐसा था भी नहीं इसमें। ठीक है, स्क्वायर क्या होते हैं? किसी नंबर की खुद से मल्टीप्लाई करने को ही स्क्वायर कहते हैं, सिंपल सा। सेकेंडली क्या होता है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब हम ढूंढते हैं तो हम इसका मतलब हम ये ढूंढ रहे हैं कि एक ऐसा नंबर जिसकी खुद पे रूट क्या होगा? ऐसा नंबर सोचना है हमें जिसकी खुद में मल्टीप्लाई करे तो 16 आ जाना चाहिए, तो 4 × 4। ओके, तो ये है आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में एक वीडियो और चला रहा हूं मैं, इस वीडियो को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना। बेटा
वीडियो विजिबल हो रही है नहीं हो रही है? अगर वीडियो विजिबल हो रही है प्लीज गिव मी अ थंबनेल। यस मींस विजिबल हो रही है। ओके, इस वीडियो को देखना फिर आपके क्वेरीज लेते हैं। यस बेटा, अंश राठौर, अंश राठौर। सर वीडियो विजिबल नहीं है। अब भी नहीं है? नहीं सर, और सर मेरा नेट क्या बोलते खराब हो गया था, इसलिए मैं अपने आप ही लीव हो गया था। ओके, तन्मय बेटा। सर अब भी वीडियो विजिबल नहीं है। बेटा अभी हो जाएगी वीडियो विजिबल, वेट। Sir, video is not visible. ओके, वेट अ सेकंड। हिबा। Yes, sir. यस बेटा, यू रेज्ड योर हैंड, व्हाई? Sir, video was not visible. ओके, दोबारा शेयर कर रहा हूँ मैं वीडियो, देखो एक बार ध्यान से। अब विजिबल हो रही है वीडियो? अगर हो रही है तो प्लीज गिव मी अ थंबनेल। ओके, चलो देखो वीडियो। आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का इंट्रोडक्शन। पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है स्क्वायर होते क्या है। सपोज करो अगर हमारे पास कोई नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे तो पॉजिटिव नंबर। सपोज करो अगर हमारे पास 2 कोई नंबर है और हमें बताना है इसका स्क्वायर क्या है, तो सिंपल सा है, 2 की मल्टीप्लाई अगेन 2 में ही कर दिया जाए तो वही उसका क्या होता है स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, इसका क्या होगा स्क्वायर। सिमिलरली 3 का स्क्वायर कर दिया जाए, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मींस पावर रूट, 3 का स्क्वायर मतलब पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मींस 3। ओके, ये हमारे क्या होते हैं स्क्वायर्स होते हैं। और सिंपल मैथमेटिकली बोला जाए, अगर m कोई नेचुरल नंबर है और m मल्टीप्लाई m करने पर हमारे पास आंसर कितना आता है n स्क्वायर। तो यस बेटा, संचिता तिवारी। सर बहुत धीरे आ रही है। बेटा एक बार ट्राई करो, वॉइस इसमें इतनी है बेटा, एक बार ट्राई करो सुनने की। म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। m का स्क्वायर होगा, n स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ m। ओके, ये हमारे स्क्वायर होते हैं। ओके, और स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? स्क्वायर रूट जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। सपोज करो हमारे पास 9 है, तो हमें पता करना है इसका स्क्वायर रूट क्या, तो हमें ऐसा नंबर पता करना होगा जिसको 3 मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए, तो वो क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 करने पर कितना आता है 9। तो अगर 9 का स्क्वायर रूट पूछा जाए, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, स्क्वायर रूट का साइन अंडर रूट 9 मींस हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा। ओके, ये है हमारा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब आती है स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर का जब स्क्वायर का कभी भी अगर हम किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो
Okay, student. Yes, बेटा आद्या. Sir, voice was not audible. वॉइस पूरी वीडियो में ऑडिबल ही नहीं थी. नहीं सर, कुछ नहीं था, मैंने हैंड रेज करके रखा हुआ था. ओके बेटा, इसमें वॉइस बहुत कम थी, शायद इसलिए आपको वॉइस आ नहीं रही थी. ठीक है, चलो मैं एक बार वीडियो चला रहा हूँ और साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या उसमें बोला गया है. ठीक है. स्क्रीन विजिबल हो रही है तो पहले तो थंबनेल दो अपना सब, या टिक करो, राइट टिक करो. जो आपके पार्टिसिपेंट पे टिक करोगे ना, वहां पे राइट टिक करने के लिए आएगा. स्क्रीन विजिबल हो रही है. सर वीडियो विजिबल है. इसमें जो वीडियो है उसमें कुछ अलग नहीं है, जो मैंने शुरू में बताया था वही सब कुछ है इसमें भी. ठीक है. ओके सर.
लेकिन अब आपको कुछ चीजें जरूर है इसमें अलग, देखते हैं क्या चीजें मिलेंगी आपको। ओके, यहाँ तक क्या बताया गया है कि किसी नंबर का स्क्वायर किसे कहते हैं, जब उसी नंबर की मल्टीप्लाई उस पर करते हैं तो उसको स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर मींस 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर मींस 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9। ओके, और इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो क्या है बच्चों, वो है सिर्फ आपका, वो है कि किसी नंबर की कोई नेचुरल नंबर है और उसी नेचुरल नंबर की खुद से मल्टीप्लाई करें तो एक नया नंबर आएगा। वो नंबर क्या होगा हमें नहीं पता, तो जो वो नंबर आएगा ना वही उसका स्क्वायर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? मींस एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर का मतलब होगा एम की मल्टीप्लाई एम में करना, और हमारे पास एक नया नंबर आएगा एन या एन स्क्वायर, वही उसका आंसर होगा। ध्यान रखना, स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, इसके बाद इसमें बताया बेटा इसका इनवर्स मींस स्क्वायर रूट। 9 का अगर स्क्वायर रूट पता करना है तो हमें क्या पता करना है, सिंपली एक ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर खुद क्या आ जाए, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 9। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछो। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछो बेटा। प्लीज क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज अपने हैंड्स डाउन करो। रमित गोयल, एनी क्वेरी बेटा? सर वीडियो नहीं विजिबल हो रही थी तब से हाथ खड़ा कर रखा है। नहीं, अब हो रही है ना? जिसको सर वीडियो विजिबल नहीं। इसके बाद क्या कहा गया है, देखो इसमें एक पॉइंट आया था जो मैंने बताया नहीं था आपको, मैं बता देता हूं। प्रॉपर्टीज में भी मैंने आपको बता दिया था क्या कि कभी भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। ओके, और साथ में ये भी बताया था किसी भी नंबर का 3 नहीं आएगा, और नोट कर लो क्योंकि ये यूज होगा आपके, ठीक है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी इसमें लास्ट में ये आ रही है, देखो ये वाली प्रॉपर्टी देखो सब, इस प्रॉपर्टी में क्या है बेटा, इस प्रॉपर्टी में 1 + 3 + 5 + 7 को ऐड करा, वो कितना आ गया 16। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आने चाहिए। क्या आने चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर आने चाहिए। ओके, ऐसे देखो दूसरा नंबर, उसमें क्या है, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, और मैं डायरेक्ट 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आएगा 36, और आप इनको वैसे भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा 36 ही आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इसके अलावा कुछ और नहीं था। चलो अब अपनी अपनी क्वेरीज पूछो इससे रिलेटेड। यस बेटा, उससे पहले है अंश राठौर। यस बेटा अंश राठौर।
अंश राठौर। सर नथिंग। सर मैं हाथ बेटा जिनकी कोई क्वेरी नहीं हो अपना हैंड्स डाउन कर ले। अधिराज, अधिराज कटारिया, आपने भी हैंड्स डाउन कर लिया। नेक्स्ट कमलप्रीत। सर जो आपने पहले समझाया था उसमें स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी? बेटा स्क्वायर की डेफिनेशन सिंपल सी ये होती है, किसी भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करना हो तो क्या होगा, let m be any natural number then its square is m square is equal to m multiply m। ओके सर। सर नोटबुक में यही लिखे? हाँ नोटबुक में, आपकी नोटबुक में दिया, वो आपकी बुक में दिया होगा बेटा, इसकी डेफिनेशन जरूर। सर यही दे रखी है। यही दे रखी है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 6 जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है बेटा, यही दे रखी है, ठीक है। In general, if a natural number m can be expressed as n square, where n is also a natural number, then m is a square number, ठीक है। आपको दोनों की डेफिनेशन लिखनी है बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सभी बच्चों को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की डेफिनेशन लिखनी है और 1 से लेके 30 तक स्क्वायर्स लिखने हैं। मींस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरीके से। आज आपका होमवर्क इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डेफिनेशन ऑफ square and definition of square roots and squares from 1 to 30। ओके ओके। और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछो। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा आपका, ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट हो जाएगा। और अपना चैप्टर नंबर 1 और 2 भी रिवाइज करना है साथ में। यस अविका बेटा, अविका स्क्वायर की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उस किसी भी नंबर का स्क्वायर करो तो बेटा कितना आता है आंसर, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। दोनों हाँ सर क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ये होती है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना किसी भी नंबर का, तो उसके एंड में क्या नहीं, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो वो किसी का स्क्वायर रूट होगा ही नहीं, तो हमें उसे चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी। ये क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। और किसी को और कोई डाउट? ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाय टू ऑल। होमवर्क आप सभी को पता चल गया, आपको मैं एडुनेक्स्ट पे भी होमवर्क भेज दूंगा। बाय टू ऑल। ओके बाय।